ناظرین کوشر خبر نامہ ہے ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل ممبر پارلیمنٹ تو عوامی اتحاد پارٹی ہند سربراہ انجینئر رشید یدوئی تہاڑ جیلس مز بند تت AIP پارٹی طرف انجینئر رشید سن رہی حوالہ دل ہائی کورٹس ست رجوع کرنا آمد انجینئر رشید سن وکیل سن طرف ہائی کورٹس ون آمد زِ ٹرائل کورٹ کس ججس گژھِ زیر التوا مستقل ضمانت کس درخواست پر جلدی فیصلہ بوزنانک ہدایت دین یس انجینئر رشید سن ضمانت یقینی بنان یہ موال پارٹی ترجمان انعام النبی سند طرف ون آمد زِ انجینئر رشید سندس ضمانتس حوالہ درخواست دائر کرنا آمز تو کیسچ سماعت پگہ یعنی 30 جنوری مقرر تمو وون زِ انجینئر رشید سن آواز پسماند لکن ہز ترجمانی کران تو تم سن مسلسل قید تھاون جمہوریت خلاف ورزی نیشنل کانفرنس پارٹی طرف آج جمس مز پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ پروگرام سنز کر آمد یت مز پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ پارٹی معاملہ حوالہ کتن دل دین آو ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی لیڈرن تو ورکرن مخاطب سپدت وونمت زِ ملکس مز اکس منظم سیاسی تحت نفرتک ماحول تیار کرنے آمد یت زن ہندو مسلمان کرت سیاسی مفاد حاصل کرنے یل زن تمو وون زِ مہاراجان اس جموں کشیر مز اخ تیتھ قانون نافذ کورمت یم سید جموں کشیر ہندین لکن ہند زمینچ تو نوکریان ہز حفاظت کرنے یوان تاہم بھارتیہ جنتا پارٹی واجنی مرکزی حکومت طرف یہ قانون ختم کرنے آمد یم سید زیادہ نقصان جم صوبہ کن لکن ووت ان کا پروپیگنڈا ہے ہندو خطرے میں 80% ہندوؤں کو خطرہ کہاں سے صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس لیے اگر اس کا توڑ آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ ہر ایک کا فرض ہے اتنا شور تھا میرے وقت میں یعنی آپ کو یاد ہے وہ بل نمبر 9 نمبر بل ایسے پھیلایا تو کہ وہ آئیں گے کہ آپ کی زمینوں میں بیٹھ جائیں گے آپ کو گھروں سے نکال دیں گے اور میں اب کیا لوگوں سے کہتے کہتے کوئی آ نہیں آ سکتا جب تک ہوم منسٹری ہندوستان کی اجازت دی گئی کوئی بس نہیں سکتا کسی نے سنا ہم نے آپ سے کہا 370 کشمیریوں کے لیے نہیں ہے مہاراجا نے 1927 میں جو قانون بنایا وہ کشمیریوں کے لیے نہیں تھا وہ ڈوگروں کو بچانے کے لیے تھا ڈوگروں کو خطرہ تھا کہ پنجاب جو ہے امیر ہے پنجاب میں وہ آپ کی زمینوں پر قبضہ کریں گے آپ کی نوکریوں پر قبضہ کریں گے تب انہوں نے 1927 میں قانون لایا آج کیا حال آج آپ نے اسے تھالیاں بھی بجائے لڈو بھی بانٹے آج جو ہے بھیا آج نوکر بھی باہر سے آ رہا ہے آج نوکریاں تمہاری نہیں ہے دوسروں کے لیے ہماری سمجھ نہیں جا رہی کشمیر کوئی نہیں آئے گا مسلمانوں بجا رہے رامبنس من آز پبلک دربارک سنز کرنے آمد یت مز نئی وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری عوامی نمائندوں تو انتظامی افسروں تو مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پر گلی پہ کتیری تام سڑک تعمیر کرنس نئی وزیر اعلیٰ کنہ کنہ لج تت تمو وونمت زِ یم وعد لکن ست کرنش آمت تم وعدین 5 ورین اندر اندر پور کرنے یت زن عام لکن راحت وات یل زن تمو وون زِ نوجوانن زنن تو عام لکن حوالہ سرکار سنجید تو پرت کان مسئلہ انزرانس حوالین سنجید قدم تلن یت لکن راحت وات
बात नहीं है। देखिए, प्रॉमिस हमने अपने मैनिफेस्टो जब हमने इलेक्शन लड़ा उसमें सारे प्रॉमिस किए हुए हैं, लिहाजा एक रूटीन में मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे ऑनरेबल एमएलए जनाब अर्जुन सिंह राजू साहब और डीडीसी चेयरपर्सन मैडम शमशाद जी, ये दोनों भी साथ थे। और हमारा यहाँ था एक नया रोड है जो यहाँ से सन्ना से जो सुरेसर जा रहा और उसकी आज नींव पत्थर रखी है वहाँ पे हमने। तो उस रोड के सिलसिले में यहाँ मैं आया था नींव पत्थर रखने के लिए, और कुछ इन लोगों के मसले मसाइल थे। एक दरबार हमने पब्लिक दरबार यहाँ लगाया और वो मसले मसाइल भी सुने। तो लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स हैं जो मैंने ऑनरेबल एमएलए साहब से भी बात की है और मैंने इनसे कहा कि आप सेक्रेटरी आ दीजिए, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के मसले होंगे वो ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे उस डिपार्टमेंट के उनसे बात करेंगे, और दूसरे जो इश्यूज़ छोटे लेवल के होंगे जो वहाँ हमारे को सेक्रेटरी कमीशन जो होंगे उनसे बात करेंगे। और जो भी मसले मसाइल हैं, जैसे खास करके हेल्थ का यहाँ इशू उठा, वो भी मैडम स्कीना इटू जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। और दूसरा भी और जो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो यहाँ बोले गए, आपने भी सुने हैं, तो मैं बात उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा आने का यहाँ मकसद एक ही था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की हमें हिदायतें हैं चीफ मिनिस्टर साहब की, आपने हर जगह जाना है और मिनिस्टरों को ये कहा गया है, और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। और कोशिश यही है कि लोगों को एक फीलिंग कराई जाए कि 10 साल का एक जो वक्फा है वो वक्फा हम रातों रात तो पूरा नहीं करेंगे, उसको फिलअप नहीं कर सकते, बट हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों ने अगर हमें चुन के भेजा है तो हम लोगों के उस विश्वास पे खरा उतरें, उनके जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। और इसी सिलसिले में आज का मेरा ये दौरा था। और यहाँ देख के लगा कि काफ़ी जो इलाका है बड़ा सुंदर है, अच्छा है, और बड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ टूरिज़्म के लिहाज से इसको काफ़ी बढ़ोतरी दी जा सकती है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। और अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी हम बात करेंगे, एमएलए साहब हम सारे, और जहाँ तक जो ये पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे भी वहाँ के ऑफिसरों से हम बात करेंगे, उनकी रिव्यू लेंगे और पूछेंगे आपने यहाँ सुरीसर में क्या किया है, या ये पूरा सन्ना है या सन्ना सर का। और राजौरी बड़हालस मज ये पूरा सार बीमार सहित मरन वाले हुंद तादाद 17 ताम वोत तो लुकन मज अम सहित खौफ दाशत वचन तो आज एक खानदान त्रिकोर बे मुतासर सपजम जो बेहोशी हंदिस हालतस मज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मज दाखिल करना आई, यम से लुकन हंदिस खौफ दाशतस मज मजीद इजाफ वचन इल्जान हस्पताल इंतजामिया तरफ अख वार्ड यमन लुकन हंद बापत मखसूस थावना आमुत युत जन यमन लुकन बेहतरीन इलाज फराम करनस मज आसानी सपदे। ये डॉक्टर तरफ वन आमुत यह कह तिस बेमारी यम से दोयम लुक ते मुतासर सपदन। जानना ज़रूरी है, जब हम एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कॉज देखना होता है ये किससे हो रहा है। तो जब हमने कॉज ढूंढने की कोशिश की, हमने एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की, हमने सैम्पलिंग की, उसमें से हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में चला न ये बैक्टीरिया है, न ये वायरस है, न ये प्रोटोजोआ है, न ये ज़ोनोटिक डिजीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब है ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो एक से दूसरे को फैले, दूसरे को तीसरे से पहले, जो एक पूरे गांव को इफ़ेक्ट करे या पूरे राजौरी को इफ़ेक्ट करे या पूरे कोटरंका को बड़ाल को इफ़ेक्ट करे। ये मैं आपके ज़रिए से आवाम को बोलना चाहता हूँ, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है जो हवा से या इवन पानी से, इवन बाकी चीज़ों से इसका ट्रांसमिशन है। जब हमने ये चीज़ें रूल आउट की, फिर हमारा ध्यान टॉक्सिन पे गया। तो टॉक्सिन ऐसी चीज़ है जो यूजुअली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में पाई जाती है अधिक मात्रा में, या तो प्लांट्स में पाई जाती है या कोई बैक्टीरिया में होता है या फंगस में होता है। तो जब हमने पेशेंट्स के क्लिनिकल सिम्टम्स देखे, उनके क्लिनिकल फीचर्स देखे और हमने कुछ टॉक्सिन्स को हमने उस मकदार में पैमाने में डाला, हमें लगा कि जो हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है ये कोई टॉक्सिन है जो न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब होता है जो टॉक्सिन बॉडी में जाके हमारे दिमाग पे अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैक करता है। और जो ये टॉक्सिन है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के माध्यम से ये टॉक्सिन मेनली खाने से होता है। ये इसको हाथ लगाने से भी फैलता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो खाने से होता है। और जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ये है, ये टॉक्सिन है, प्रेफरेबली न्यूरोटॉक्सिन है जो एक्यूट एनकेफेलोपैथी करता है केसेस में। एक्यूट एनकेफेलोपैथी मतलब होता है ये पहले कॉमन सिम्टम्स करता है जैसे वोमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, फिर अचानक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग में हमला करता है, ड्राउजीनेस करता है, ऑल्टर सेंसोरियम करता है, सडन कोलैप्स और
डेथ करता है. दैट मीन्स पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअल होते, उसके बाद सडन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होती है. और ये पेक्यूलियर ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ टॉक्सिन्स में देखी जाती है, इनका ये कोर्स ऑफ एक्शन. एक चीज़ मैं और आपसे अब जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि एक न्यूरोटॉक्सिन ऐसा है जो इस तरह के अटैक करता है, अगर ये आइडेंटिफाइड हुआ है कि अगर ये न्यूरोटॉक्सिन है तो फिर इसका एंटीडोज क्या है और फिर क्यों लोगों को बचाया नहीं जा पा रहा? हमने जो हमारे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आई, चंडीगढ़ से, एनआईवी पुणे से, उन्होंने कुछ टॉक्सिन्स के नाम दिए हैं, लेकिन वो टॉक्सिन्स विद इन परमिसिबल लेवल में पाए गए हैं. इसका मतलब है टॉक्सिन तब इफेक्ट करेगा जब वो अपनी मात्रा में अधिक से इंजेक्शन किया होगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज SD कॉलोनी बटमालनस मज एक तकरीब हुंद संज करने यथ दौरान कई नौजवानों पार्टी में शिरकत कर. अत मौके पे MLA लाल चौक एहसान परदेसी सिंध तरफ पार्टी मज तिमन इस्तकबाल करना आव तो MLA सिंध तरफ यकीन दहनी करना आमद लुकन सत करना आमद तमाम वादियन पूर करने युथ लुकन राहत वातनाने यी. ऐसे इलेक्शन से पहले भी हमारा एक जामिया प्लान हमेशा रहा है, एक एक्टिविटी हमेशा रही है पब्लिक आउटरीच की. जो इलेक्शन से पहले हमारा जो एक हज़्ब मामूल था कि लोगों में जाना है, इलाकों में जाना है, लोगों से बातचीत करनी है, वो सिलसिला हमने बंद नहीं किया है. इलेक्शन जीतने के बाद भी बिल्कुल उसी तरीके पे जो है हमारा पब्लिक आउटरीच जो है वो लगातार जो है चलता रहता है. आज की डेट में भी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद ही कोई इलाका होगा जहां जीतने के बाद हम 2 बार 3 बार जो है हम नहीं गए होंगे. आज उसी हवाले से आज हमारा बटमालू SD कॉलोनी का जो हल्का है, वहाँ से हमारे कुछ नौजवान साथी आए हैं आज ज्वाइन करने के लिए. मुतबा मकसद ये है कि तंजीम को मजबूत करना है और जितने भी इनके मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेसिस पे उनको देख के हल करना है. देखिए, जहाँ जिस जगह से मुझे शिकायत मिलती है उसका हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका अजाला हो. जो ग्रीवेंसेस हमारे पास आती हैं, हमने हमारा बिल्कुल अपना ऑफिस का एक प्रॉपर सेटअप रखा है. जो भी हमारे ऑफिस में अपनी भी कोई किसी भी लेवल की किसी भी किस्म की ग्रीवेंस लेके आता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि उस ग्रीवेंस का जो है अजाला हो और उस ग्रीवेंस का हम इंश्योर करते हैं कि जो ग्रीवेंस जो किसी की भी हो, चाहे शॉपकीपर्स की हो या लोकल लोगों की है, वो ग्रीवेंस ना रहें. इसमें एक इंशाल्लाह बिल्कुल जो मैंने कहा कि हमारा ऑफिस जो है वर्किंग है. जो जितने भी जायज़ इश्यूज़ जो हैं ग्रीवेंसेस आते हैं, अगर मेरे पास कोई भी ग्रीवेंसेस आती है, हम 100% इंश्योर करते हैं कि उस ग्रीवेंस पे कार्रवाई हो और जब तक उस ग्रीवेंस का अजाला नहीं होता है हम बाज़ाब्ता उस ग्रीवेंस का ट्रैक करते हैं जब तक वो इशू जो है लोगों का रिजॉल्व नहीं होता है. आम सयाहन सत फनकार ते वादि कशीर हुंद दौर करान यम पन्ने महारत जरिए कशीर हंस खूबसूरती पूर दुनियास ब्रोखन पेश करान. मध्य प्रदेश से ताल्लुक थवन वोल जाहिद नाउक आर्टिस्ट तमन दोहन कशीर मज पन्ने पेंटिंग जरिए कशीर हंस खूबसूरती नक्शन मज कैद करान. गुलिस्तान न्यूज़ सत कत करान तमो वोनमुत जे कशीर हुंद दौर करन तो ये खूबसूरती पे पेंटिंग बनावन तम सुन बचपन पे ख्वाब. तमो वोन ज़ मुतलिक मुल्कस मज मनफी तासुर फैलान ताहम ज़मीनी हकीकत अत बरक्स वुचन. तमो लुकन तो वाजवान तारीफ करमज. जी, मेरा नाम अल्ताफ़ है, अल्ताफ़ शेख. मैं इंदौर से MP से आया हूँ. मैं कश्मीर में ऑयल पेंटिंग्स बनाने आया हूँ. मैं फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरा फ़ाइन आर्ट्स कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैं नेचर्स पे पेंटिंग्स करता हूँ. और मैंने सोचा कि नेचर शायद कश्मीर से पहले ज़्यादा अच्छा तो सुंदर और कहीं नहीं हो सकता. मैं कश्मीर पहली बार आया हूँ और जो कि सही भी है. अभी मैं कल ही कश्मीर आया हूँ. अब मैं ये पेंटिंग्स बना रहा हूँ, ऑयल पेंटिंग बना रहा हूँ. ये मैं एग्जीबिशंस के लिए रेडी कर रहा हूँ. मैं सोलो एग्जीबिशन जो करने वाला हूँ उसके लिए मैं पेंटिंग बना रहा हूँ. अभी आप कश्मीर में हैं. खूबसूरती तो मैं वैसे हिमाचल में भी गया हूँ, काफ़ी जगह गया हूँ, बट ये एक अलग ही तरीके की खूबसूरती है. मतलब इससे हम ऐसे बोल के नहीं बता सकते कि ये उस टाइप से हैं. आपको क्लास में? जी, मेरा 10 या 12 दिन रहने का यहाँ पर इरादा है और मैं पर डे मतलब एक पेंटिंग बनाने का सोच के आया हूँ कि हर दिन एक नई पेंटिंग बनाऊँगा. ये पेंटिंग का मैं भी मतलब जब पहले कश्मीर आ रहा था या मैंने पहले सुना था कि काफ़ी
कुछ होता है या संभल कर जाना या वो करना, बट मैं यहाँ पर आया, कल भी मैं रात में मतलब तकरीबन 11:30 तक बाहर था, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत है या कुछ ऐसा है कि हम ना आए या कुछ करके, मतलब मुझे तो काफ़ी सिक्योर फील लगा। मैं कहता हूँ कि कश्मीर जो आप लोगों से सुनते हैं उस पर विश्वास ना करें, हम यहाँ पर आएँ उस चीज़ को देखें कि कश्मीर क्या है और कश्मीर आएँ। आपके चैनल का मैं थैंक यू बोलना चाहूँ। वक्फ पात खबरनामस मज तुन दोबारा खैर मकदम। म्यूनसिपल काउंसिल शुपियन तरफ आवा सफाई हवाले एक मुहिम हुंद संज करने या दौरान मुख्तलिफ इलाकन मज साफ सफाई करना आई। मुहिम हुंद दसा म्यूनसिपल काउंसिल सेक्रेटरी असदुल्ला तो दोमियो अफसरों तरफ तुलन अत मौके पे वर्करों तरफ साफ सफाई करना आय तक आम लुकन पे जोर दिन आमुत तम गसन पनुन माहौल साफ थावन युथ शुपियन मजीद खूबसूरत बनाने यी। आज बहुत अहम है हमारे लिए क्योंकि हम शोपियान के रहने वाले हैं और मैं अपने सारे शोपियान के लोगों से अपील करता हूं कि जो हमारी ये वाटर बॉडीज़ है आप इनको साफ़ रखें, जो हमारे कोच हैं इनको भी साफ़ रखिए क्योंकि इनसे हमें नुकसान होता है कि हम फिर यही पानी पीते हैं जिन पे आप ये डस्ट डालते हो या फिर हमारे घर में हमारे नलकों से पानी आता है, फिर हम यही पीते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ड्राइव कंटिन्यूसली होनी चाहिए और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज़ आप अपने टाउन को साफ़ रखिए, आप अपने गली कोचों को साफ़ रखिए, काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और शोपियान के लोगों के लिए। उनमें ये 1 वीक प्रोग्राम आया है, इस हेड के तहत जो स्वच्छता ही एक्टिविटीज़ हैं 21 जनवरी से 24 जनवरी तक, और कल से ही हमने 21 से ही म्युनिसिपल काउंसिल शुपियन के वर्दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने जो फील्ड अमला हैं, हमारे जो हीरो सैनिटेशन वर्कर्स उनके साथ जो जुड़े हैं उनके ऑफिसर्स, कल से और आज कल ही हमने मीटिंग ली है हमारे वर्दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब ने। उन्होंने ये हिदायत दी है कि आज कल भी हमने किया 21 को भी आज 22 है, तो पूरा जितना भी हमारा सैनिटेशन स्टाफ है इस म्युनिसिपल काउंसिल शुपियन में, उसके साथ साथ हमारा जितने भी अदर स्टाफ हैं म्युनिसिपल काउंसिल शुपियन और यहाँ के ज़ियारत एक्टिविटीज़ भी आए हमारे यहाँ। हम बटपुरा और नोटू नाला जितने भी आज के दिन में हमको दिया गया है कि आपको क्या क्या करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। इरसाल हुआ है फ्रॉम द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, जिसकी निगरानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कर रही है। उसी में अभी एक शेड्यूल आया है 21 से 24 तक सफाई के मतलब जो हमारे बस स्टैंड है, स्कूल्स हैं या परमानेंट कोई जगह है, चाहे वो मतलब आप देख रहे हैं जो हमारे यहाँ सेहत अफजा मकाम है उनको साफ सुथरा रखना है। उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट जो यहाँ के परमानेंट सिटीजन है, जो यहाँ के लोग शुमाली कशीर हंदवरिस मज युदवाई कह दो ब्रोह गैर मायारी सामान कन सवाल का यह दुकान सेल करना आई। मंजूर अहमद तेली सुन दुकान शामिल तो जुर्मान अदा करने पत सिर्फ मंजूर अहमद तेली सुन दुकान यल त्रान आव तहम आज बे शिकायत मौसूल सपज मंजूर अहमद तेली बे तम चीज़ कनान पत इंतजामिया तरफ तस खिलाफ कार्रवाई कर चाय तो दोम सामान तिमन नश जब्त करना आव। मवाल तहसीलदार हंदवारा सिंह तरफ वन आमुत गैर मायारी सामान करने वाले खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमले मज अन्न। देखिए, जैसे आपको पता है लास्ट हफ्ते पुलिस की एक कार्रवाई में एक दुकान पे छापे के दौरान कुछ माल पकड़ा गया था जिसमें एफआईआर भी दर्ज हुआ था। उसके अलावा हमने चोगुल में छापेमारी की थी और कुछ चाय पकड़ी गई थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी में फिल्डिंग थी। तो इस टाइम चोगुल में हमारे कोई 5 दुकान और 2 गोडाउन सील हैं जिसमें करीबन 100 चाय के बैग अभी सील कंडीशन में, क्योंकि उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। इसके एवज में जो मंजूर अहमद तेली है जिसकी दुकान पहले सील की गई थी जहां से कार्रवाई शुरू हुई थी, उसकी एक दरखास्त पे उसकी दुकान को छोड़ा गया था आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड ही हैज़ केप्ट अ सिक्योरिटी ऑफ 50,000 रुपीज़ फॉर दैट। तो एक एफिडेविट, पुलिस की रिपोर्ट, सारा कुछ लेने के बाद उसको ये हिदायत दी गई थी कि जो उसकी दुकान में बाकी माल है जो हकीकन जो बेच सकता है वो बेचेगा, बट जिन प्रोडक्ट्स को हमने सील किया है वो नहीं बेचेगा। तो आज हमें कंप्लेंट मिली कि वो माल अभी बेच रहा है उस चाय को, तो हमने वो चाय सीज कर दी है उसकी, बिकॉज अभी हमारे पास इस चाय की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। उसकी दुकान में बाकी सामान है।
محکمہ ٹرانسپورٹس مز یدوئی ARTO ہز تبدیلی عمل مز ان آئی تت بڈگامس مز ARTO عارف پرویز شاہ سند طرف آز چارج رٹنے آمز ات موقع پر اعتاز بس سٹینڈ یونین طرف شاندار استقبال کرنا آو تمو یقین دہانی کرم سہ کر ژُکہِ سان کام یُتھ ٹرانسپورٹچ نقل و حمل بہتر بنانے یی دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹرانسفر یہاں پہ ہوا ہوں، تو میں نے اس سے پہلے بھی یہاں کام کیا ہے اور آج بھی میں یہاں آیا ہوں. جو یہاں کے سومو اسٹینڈ وغیرہ جو ٹرانسپورٹ سے وہ آئے تھے وش کرنے کے لیے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور آج کے اور اس ڈیٹ میں فرق ہی فرق ہے. ان دنوں سارا آف لائن تھا، آج آن لائن ہے. اور جو یہاں کے جو اسٹینڈز میں گاڑیاں کا تعداد بڑھ گیا ہے اور یہاں کے جو سٹاف جو ہمارا تھا اس وقت کم تھا، آج کل الحمدللہ سٹاف بھی اچھا ہے، بلڈنگ بھی اچھی ہے. تو انشاءاللہ ان فیوچر ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم اچھا کام کریں، جہاں پر بھی کوئی کوتاہی ہے اس کو ٹھیک کریں. اور ساتھ میں ہم آج کا جو یہ ہفتہ آخری ہفتہ چل رہا ہے، ہم زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے روڈ سیفٹی پروگرامز پہ. ہم ہر ایک سومو اسٹینڈ میں کوشش کریں گے جانے کے لیے کہ وہاں ہم اویئرنیس کریں. جو ہمارے یہاں پہ دو تین انسپیکٹر صاحبان ہیں، پورے 3 ہفتے سے لگے رہے ہیں اس کے پیچھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ہفتے ہم زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیوں تک جائیں جو دور دراز اسٹینڈز ہیں جہاں تک آج شمالی کشیر کھنبل ہندوار کے لوگوں طرف شکایت باون ون آمت یدوئی مقامی کۄلہِ ہٕنٛز صفٲیی حوالہ کہیا پھر متعلقہ محکمہ کٮ۪ن ذمہ دارن زان دنہٕ آیہِ تاہم چھُنہٕ آز تام کانٛہہ تہِ قدم تُلنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ مقٲمی لُکھ مویوٗس سپدۍ. مقٲمی لوٗکو طرف انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ کۄلہِ ہٕنٛز صاف صفٲیی حوالہ گژھن سنجیدٕ قدم تُلنہٕ یِنۍ یُتھ زن لُکن منٛز پٲدٕ سپٕزمٕژ مویوٗسی دوٗر کرنہٕ یی. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ پچھلے سال کی بات نہیں ہے، پچھلے 15-20 سال کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو آفسران وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ان آفسز میں بیٹھے یہ اس کا پرماننٹ سولوشن تو ڈھونڈ نہیں پائے 15 سال سے. بٹ لاسٹ ایئر ایز یو آر اویئر اباؤٹ دس، آپ وہاں پہ خود پریزنٹ تھے. ایڈمنسٹریشن کو اس ٹائم پہ اس وارڈ میں JCB پہ اندر جانا پڑا تھا کیونکہ ہر ایک گھر میں آلموسٹ جو بھی اس سائڈ سے جتنے بھی گھر آتے ہیں ان میں 1 سٹوری تک اس ٹائم پہ پانی تھا. بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ. آپ اگر اس کی حالت دیکھ سکتے ہو، کیمرہ آپ اگر اس طرف بھی گھمائیں گے اس کی حالت بھی آپ اس کی دیکھیے، اس میں پیڑ اب اگنے لگے ہیں. دیٹ مینس کہ ڈپارٹمنٹ جب لاسٹ ایئر پانی آیا 1 سال سے ان کو یہ خیال نہیں آیا. اب میرے خیال سے وہ ویٹ کرے گھروں میں پھر سے پانی چلا جائے، لوگوں کو پھر سے تکلیف ہو تاکہ ہمیں ایویکویٹ لوگ کرنے پڑے. جیسے لاسٹ ایئر JCB پہ آنا پڑا تھا ایڈمنسٹریشن کو کنسرن، اس ٹائم پہ AD سر تھے، تحصیلدار صاحب تھے. لیکن ان کو ہم نے ریکویسٹ بھی کی، 2-4 بار وہاں گئے بھی. اب ان کے ایکسکیوزز کبھی یہ فنڈس نہیں. اب ایک یہ نالا ان کو پرٹین ہوتا ہے، یہ بھی ان سے مینیج نہیں ہو پا رہا ہے. اس سے لوگوں کو آپ دیکھیے انفیکشن کتنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انفیکشن اس سے کتنا پھیل جاتا ہے. تو میری ان سے پھر سے ایک ہی گزارش رہے گی کہ مہربانی کر کے ایک سوئفٹ ایکشن اس پہ کیا جائے. اس کو مہربانی کر کے جلد سے جلد کلین کیا جائے اس نالے کو، تاکہ جو اپ کمنگ آفٹر 2 months جو بارشوں کا اس ٹائم پہ سلسلہ ہوتا ہے کنٹینیوسلی، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، گھروں میں پھر سے پانی نہ چلا جائے. جی بالکل، ہم میونسپیلٹی پہ بھی گئے تھے. انہوں نے بولا ایک پرٹین ہوتی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو. اریگیشن ڈپارٹمنٹ پہ بھی ہم 1-2 بار ہم نے ان سے بولا، دے سیڈ کہ ہمارے پاس کچھ فنڈس کی اویلیبلٹی نہیں ہے. اب ہم چیئرس پہ تو بیٹھے نہیں ہم اس کے لیے فنڈس اویلیبل کریں. اب وی آر ناٹ ورکنگ ان فائنانس ڈپارٹمنٹ سو ویل اویل فنڈس فار آل دس. تو یہ تو ان کا کام ہے، وہ ان کو پتہ ہے ہمیں نالا یہ تو صاف کرانا ہی ہے، لوگوں کو پرابلم نہ ہو. تو اگر گمز لاوارس ایڈمنسٹریشن چاہیے نہیں کی اریگیشنس ون بار 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 یہ تہذ ڈیوٹی تہد فرض تم کرنے خاطر تیار. ونی تحصیلدار صاحب ایکشن خبر ثہ کت مجبوری مز بند. تو یہ لاوارس قصہ بت ہلک ات پہ زراعت تہ بت چھلان امے کل پہ. یہ پوز ات آو نبرم کھانا ژھوٹ تراؤن کی یتھی. مے گئی 37 ؤری یہ کام کران، بیس بے ات کل نزدیک. یہ کل بارو دان، یہ کتان صدا دان، شاید ونان کہ بس کیا تھما. ناظرین کوشر خبر نامہ یتنس خوش روزیو، خوشحال روزیو، فی امان اللہ.